In 1993, Devinder Singh Bhullar triggered a car bomb blast outside the Indian Youth Congress office in New Delhi. 9 lives were lost. The blast, its target, MS Bitta, claims would have killed hundreds had it not been a quirk of fate that took him away from the crowd. He's going to be joining me in just a moment from now live. Today, finally, the highest court of the land sealed Bhullar's fate, shut all doors for mercy. But politics over terror continues. Attempts to save him from the noose are still not over, even as the man who was the prime target of the attack breaks down as he pleads to delink politics from terror. Take a look at a highly emotional MS Bitta this morning before I have him live in the studio. जो मुझे पार्टी की लीडरशिप ने जो मुझे बार बार मारा, मुझे गोलियों और रॉकेट लॉन्चर का कोई असर नहीं हुआ। इन्होंने जो मारा वो मुझे एटम बमों की तरह लगते हैं, जो मुझे रोज मेरी पार्टी की लीडरशिप मारती है। He's a man who is fighting terror for years, a victim of terrorism himself. Bitta was the Youth Congress president when terror struck Delhi. Bitta himself got seriously injured in the attack, which was masterminded by terrorist Devinder Singh Bhullar. इन गंदे राजनीतिक लोगों की अत्याचारों से, पॉलिटिकल टेररिज्म से मेरी मौत न आए। मैं आतंकवादियों का पीड़ित नहीं हूँ, मैं अपनी पार्टी की लीडरशिप का पीड़ित हूँ। 20 years on, a teary-eyed Bitta reacting to Bhullar's sentencing. पर जो मुझे पार्टी की लीडरशिप ने जो मुझे बार बार मारा, मुझे गोलियों और रॉकेट लॉन्चर का कोई असर नहीं हुआ। इन्होंने जो मारा वो मुझे एटम बमों की तरह लगते हैं, जो मुझे रोज मेरी पार्टी की लीडरशिप मारती है। But with the reaction to the verdict came the explosive revelations. Bitta hitting out at the Congress for influencing the Bhullar case, charging 3 top Congress leaders of a cover-up. जिस तरीके से शीला दीक्षित सरकार ने भुल्लर को मेंटल करार दिया, खुल करके मदद की, जिस तरीके से भुल्लर की फाइल को होम मिनिस्ट्री के अंदर, लॉ मिनिस्ट्री के अंदर, दिल्ली सरकार के अंदर 3 किलोमीटर के अंदर 15 साल घुमाते रहे, मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे अंबिका सोनी ने खुद बुला के कहा कि भुल्लर के मामले में चुप हो जाइए। मुझे अंबिका सोनी ने खुद बुला के कहा हाई कमान का आदेश है, अफजल के मामले में चुप हो जाइए। कपिल सिब्बल कोर्ट में क्यों पेश हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल है। कपिल सिब्बल भी कोर्ट में पेश होता है मेरे केस में। सुरक्षा भी मेरी कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप विड्रॉ करती है। Bitta presenting facts to substantiate his claims. He says Sibbal fought for Bhullar in court, so it proves Congress's alleged involvement. Caught unawares, the Congress is in firefighting mode, the party rejecting Bitta's allegations as baseless. मनिंदर बिट्टा जी ने यार सुप्रीम कोर्ट का आज जजमेंट लिखा है ना, आज आया है, वो सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट है सब मान्य है। और ये कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, किसने कहा, वो तो मालूम ही नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जजमेंट दी है वो सर आंखों पे नहीं। देखिए, मनिंदर सिंह बिट्टा के द्वारा ये कहना कि इस न्याय में कांग्रेस के नेताओं के कारण देरी हुई या उनकी सुरक्षा वापस हुई, मैं समझता हूँ आज भी अगर मनिंदर सिंह बिट्टा की सुरक्षा है तो वो कांग्रेस यूपी की सरकार की देन है। Sorry? Well, I don't know. It is not my job. You know that? What is your stand? What is my stand? I can't have an individual stand. Congress may have denied Bitta's charges, but his latest claims have opened a can of worms for the grand old party. Bureau Report, headlines today. Joining us on center stage today, a man who's fought a battle relentlessly for the last 20 years. A very proud MS Bitta, chairperson of the All India Anti-Terrorist Front. Very few people survive multiple assassination attempts and live to see the day when their attacker
would be hung. Mr. Bitta is joining us on this program. It must be a very, very big moment for you, Mr. Bitta. क्या आपको उम्मीद थी कि भुल्लर को फांसी का फैसला आएगा, या आपको लग रहा था कि एक बार फिर से जिस तरीके से वो 20 साल से बच रहा है, एक बार फिर से किसी वजह से बच जाएगा? पहले तो उम्मीद नहीं थी, पहले तो यही था जो पिछले केस हुए कि फांसी होगी। इस बार मुझे लगता था कि फांसी के फंदे से बच जाएगा। सबसे बड़ा कारण था इतने साल उसकी फाइल को दबा के रखना, कपिल सिब्बल का केस लड़ना, शीला डिस्ट्रिक्ट को उसको दिमागी परेशानी घोषित करके, डॉक्टर था वहां कोई, उसको बार बार ट्रांसफर होता था, रिश्वत देके रख लेते थे, बाहर से फंडिंग आनी। तो मुझे लगता था कि इस बार वो बच जाएगा, पर मैं जब ऐसा फैसला आया, मैं सोच नहीं सकता था कि ऐसा फैसला सुनाया जाएगा। आप बहुत इमोशनल भी हो गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं, इमोशनल इसलिए नहीं मैं हुआ कि उसको फांसी हुई या नहीं हुई, मैं इसलिए हुआ कि मुझे आतंकवादियों का कोई खौफ नहीं है। मेरी जिंदगी बोनस है, मर चुका हूं। मुझे बम फूलों की तरह लगते हैं, मेरा शरीर ऐसा लोहे का है, जब बम चलते हैं मुझे भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए, तो मैं चाहता हूं मैं शहीद हो जाऊं। मुझे फूल लगते हैं, गुलाब के फूल लगते हैं। पर जो मेरी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी ने जो नेताओं ने 20 साल मुझे मेंटली टॉर्चर किया, कभी कपिल सिब्बल कोर्ट में पेश होता है, कभी मेरी सुरक्षा को विड्रा कर लिया जाता है, कभी सुरक्षा को विड्रा करके आतंकवादियों के आगे फेंक दिया जाता है। तो मैं सोचता था कि ये लड़ाई मेरी नहीं थी, ये देश की लड़ाई थी, ये पंजाब की अमन शांति की लड़ाई थी। मेरी को भुल्लर से पर्सनल लड़ाई नहीं थी, भुल्लर का मैं कोई दुश्मन नहीं था। सवाल ये था कि वो बहनों के सुहागों को उजाड़ता था, बच्चों को यतीम करता था। पर डॉक्टर ये कहते हैं कि भुल्लर शहादरा मेंटल हॉस्पिटल में है, वो डिप्रेशन में है, उसकी सुसाइडल टेंडेंसीज हैं और इस वजह से उसको फांसी नहीं होनी चाहिए। मैं बताऊं, डॉक्टर अजय कुमार है, यह डॉक्टर अजय कुमार को रिश्वत दी जाती है, बार बार बाहर से फंडिंग आती है। कैसे कह सकते हैं आप? कैसे कह सकते हैं? क्या प्रूफ है? अब आईबी जांच करे, सीबीआई जांच करे, नहीं तो मुझे दे दो आधे घंटे के लिए, बड़े प्यार से उससे मका लूंगा। मेरे पास ऐसे सबूत है। कई हमारे जो व्यूअर्स हैं बहुत यंग हैं, वो उस वक्त वहां पे थे नहीं, 1993 में, उनको मालूम नहीं, याद नहीं क्या हुआ। आप हमें क्यों नहीं बताते किस तरीके से आपकी सिक्योरिटी को विड्रॉ किया गया और एकाएक उसके बाद आप पे इतना बड़ा जानलेवा हमला हुआ? मैं आपको बताना चाहता हूं, 1992 में मेरे ऊपर अमृतसर में ब्लास्ट हुआ, 45 केजी आरडीएक्स का कार बम, मिनिस्टर था, और उसमें 33 लोग मारे गए, 90 जख्मी हो गए, सीआरपी के जवान, पब्लिक के सिर उड़ गए। मुझे दिल्ली बुला लिया गया, आप यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनोगे। अस्पताल से अभी छुट्टी नहीं हुई थी, नरसिम्हा राव जी ने कहा आपको दिल्ली जिम्मेदारी संभालनी है, पूरे देश में काम करना है। मैं कहा सर मेरा इलाज चल रहा है। कहते हम यहां हॉस्पिटल भी इलाज कराएंगे, कोठी भी देंगे, आपको देश का काम। मैं आ गया। आने के बाद 3 दिन बाद नरसिम्हा राव जी ने एयरपोर्ट पे कहा सीनियर नेताओं को, मुझे कहने लगा तुम्हारे पास कोठी है? मैं कहा सर मैं नया आया हूं। कहता इसको कोठी दे दो, इसके ऊपर ब्लास्ट होगा, इसकी सुरक्षा को देखो। सुरक्षा दी मुझे, 15 दिन के लिए मिली। 15 दिन के बाद ये चिट्ठी आती है आपकी सुरक्षा विड्रा। ब्लास्ट के 1 दिन पहले मैंने एक आरपी सिंह ज्वाइंट कमिश्नर थे दिल्ली पुलिस के सुरक्षा के, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, मुझे दिल्ली का सिस्टम पता नहीं था। कहते ये होम मिनिस्ट्री का रिव्यू कमेटी का फैसला है, पर केपीएस गिल का फोन आया है कि बिट्टा की जान को खतरा है, इसके ऊपर ब्लास्ट हो सकता है, इंफॉर्मेशन है, इसलिए मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड 1 दिन देता हूं, आप होम मिनिस्टर को मिल लीजिए। होम मिनिस्टर का 2 बजे का टाइम फिक्स हुआ। मैं होम मिनिस्टर को मिलने जा रहा था, 500 लोग मुझे मिलने आए हुए थे। उस कार बम के आसपास पब्लिक थी, 500 कांग्रेस का वर्कर मिलने आ रहा था। मेरा पीए आया, कहता जी आपका टाइम आगे हो गया है, वर्कर को मिल लीजिए। अगर उसी वक्त काफले में निकल जाता, 500 लोग मारे जाते, 40 किलो आरडीएक्स अगर थोड़ा थोड़ा लगा दो, पुलिस दिल्ली तबाह कर देता है। एक छोटे से शरीर पे लगा दिया। मैं वर्कर को मिला, फिर सीपीडब्ल्यूडी के अफसरों को मिला, उसके बाद वो वर्कर 500 चले गए। जैसे काफला निकला, रिमोट तक चला और बम ब्लास्ट हो गया, और मेरे साथ मेरे जवान और सब लोग वहां पे ढह ढेरी हो गए। मेरी किसी से पर्सनल लड़ाई नहीं थी, मेरी तो अमन शांति की लड़ाई थी। मेरी लड़ाई तो भारत माता की आजादी की रक्षा की लड़ाई थी। भुल्लर का को मैं पर्सनली दुश्मन नहीं था। हमारा तो ये था कि किसी की बहन का सुहाग ना उजाड़ो, किसी बच्चे को यतीम मत करो, ये हमारी लड़ाई। Also joining us, I want to continue talking to you, but also joining us on this program for a different perspective is Arvinder Singh Bijli. He is the friend of Mohinder Singh Bhullar. With us also on this program at this time is Maninderjeet Singh Sirsa, President of the Youth Akali Dal,
Badal and Sanjay Hegde, advocate of the Supreme Court. I want to go across also to Arvinder Singh Bijli, because हमने अभी सुना बिजली साहब किस तरीके से बिट्टा साहब ने बताया कि उन पर जानलेवा हमला हुआ। उनकी कहानी सुनकर शायद ही कोई ऐसा व्यूअर होगा जो इस प्रोग्राम को देख रहा होगा जिसके जहन में यह सवाल भी आएगा कि उनके हमलावर को, उस आतंकवादी को फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। आप लोग जो इतने दिन से इतना बड़ा एक षड्यंत्र रच रहे हैं, आप ये पूरा ड्रामा कर रहे हैं, आपके हिसाब से हर आतंकवादी को फांसी नहीं होनी चाहिए? भुल्लर ने जो किया उसकी पनिशमेंट उसे क्यों नहीं मिले? मैं तो पहले बिट्टा साहब से ये पूछना चाहता हूं कि आतंकवादी की डेफिनेशन क्या है? जो किसी पे हमला करता है, जो किसी की जान लेने की कोशिश करता है, वो आतंकवादी है। इसमें कोई धर्म कुछ नहीं है। वेरी गुड। इनसे ये ना पूछो, समीर सेन ने जब देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर के पिताजी को, उसके मासड़ को, जो कि क्लास 1 अफसर थे, अपनी कस्टडी में लेकर के मार के उनकी लाशें तक गायब कर दी, उसको ये क्या कहेंगे? नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप सवाल को सवाल से काउंटर मत कीजिए। मेरा सवाल आपसे यह है कि ये बहुत क्लियरली इस्टेब्लिश हो गया है कि भुल्लर ने एक जानलेवा हमला किया जिसमें 9 लोगों की मौत हुई, जिसमें बाल बाल बिट्टा साहब बचे। ऐसे आतंकवादी को तो फांसी की सजा बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। मैं यही बिट्टा साहब से क्वेश्चन करना चाहता हूं, आतंकवाद की डेफिनेशन क्या है? हम मेरे से सवाल पूछने वाले हैं कौन? हैं मेरे से सवाल पूछते हैं, आप उनको जवाब दो। मेरे से क्या पूछते हैं? मैं तो विक्टिम हूं, उनसे सवाल करो, उनसे जवाब दो। और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे से सवाल पूछने वाले कि इतना बड़ा जानलेवा हमला हुआ और आप जो आतंकवादी था, जो टेररिस्ट था, आप उसको विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बात नहीं समझ में आ रही बिजली साहब आपकी। 1984 में 3000 सिख जो मारे गए वो भी विक्टिम थे। नहीं, उनके भी हमलावरों को सजा होनी चाहिए। ये कौन कह रहा है कि उनके हमलावरों को सजा नहीं होनी चाहिए? जो 84 के दंगों में मारे गए उनके भी हमलावर। अरे बिजली साहब मेरी बात सुनिए, दंगे कहीं भी हिंदुस्तान के अंदर हो, चाहे 1984 के दंगे हो, कोई भी हो, उसको सजा मिलनी चाहिए, पर सुप्रीम कोर्ट का अपमान नहीं। चाहे 84 का दंगा हो, चाहे ये हो, सुप्रीम कोर्ट के आगे सिर झुकाना चाहिए। अगर आज भुल्लर की फांसी को सुप्रीम कोर्ट छोड़ देती तो मैं सुप्रीम कोर्ट के आगे सिर झुकाता। मैं सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज नहीं करता। हम आपस में बहस ना करें। मेरे ना आप पर्सनल दुश्मन है, ना मेरा पर्सनल दुश्मनी भुल्लर से थी। सवाल है, बेगुनाहों का खून कोई भी करे, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो देशद्रोही है, वो देश के साथ धोखा करता है। अभी लोग बोल रहे हैं कि भुल्लर की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, दिमागी तौर से वो बीमार हैं, इस वजह से उनको फांसी नहीं होनी चाहिए। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, आपको नहीं लगता कि ये सब जो बहानेबाजी है वो नहीं होनी चाहिए? क्योंकि बिट्टा साहब बोलते हैं कि बहुत सारा फॉरेन से फंड आ रहा है, इस वजह से भुल्लर को हैंग नहीं। मेरी बात सुनिए, ये फंड की जांच तो हो। अरे कपिल सिब्बल जैसे वकील कर लेते हैं। कपिल सिब्बल कोई थोड़े से पैसे लेता है? मैं अगर वकील करना हो कपिल सिब्बल को, मैं नहीं कर सकता। परमजीत सिंह सरना, बाहर से फंडिंग आई परमजीत सिंह सरना को, जो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रेसिडेंट है, कि उसकी जांच होगी कि वो पैसा कहां गया भुल्लर के नाम पे? परमजीत सिंह सरना ने इतना पैसा। एब्सोल्युटली। Is it not high time, Mr. Sirsa, that politics now ends? There should be no politics with terror. The Supreme Court has ruled Bhullar must hang. नहीं, मैं बिट्टा जी को पहले कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल गलत है। जो उनके इल्जाम हैं, जहां तक दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की बात है, मैं उसकी बात जवाब नहीं दे सकता हूं। पहले क्या हुआ मैं उसकी जवाब नहीं दे सकता। एक दूसरी बड़ी बात यह है, देखिए बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि क्या कानून में हमारा भी विश्वास है, सभी का कानून में विश्वास है, लेकिन यहां पे एक इंस्टेंस केस, बिल्कुल डिफरेंट केस है जिसको गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। बात ये नहीं है, हम ये नहीं चाहते कि देश में किसी तरीके की भी आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाए। हम ये मानते हैं आतंकवाद देशद्रोही हैं, हम कतई उनके साथ नहीं हैं, लेकिन देवेंद्र पाल भुल्लर आतंकवादी नहीं है। देवेंद्र पाल भुल्लर ने ऐसा गुनाह नहीं किया तो उसको सजाए। जी नहीं मारा, आप पहले जी नहीं, हाँ, आप इस बात पे उसका रोल क्या है? जज साहब का भी मानना यह है, ट्रायल कोर्ट ने भी यह कहा, इसने आरडीएक्स सप्लाई किया है। किस बेहात पे कहा गया?
कोई उसकी विटनेस नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट विटनेस उसके खिलाफ नहीं है, कोई पुलिस विटनेस उसके खिलाफ नहीं है। केवल एक बात कही गई है, सेल्फ कन्फेशन। उसका कन्फेशन था। सुनिए, आप सुनिए बात, आपने बिल्कुल गलत है। कन्फेशन आप मेरे को दे दीजिए, जिसको कहा वो कन्फेस करेगा। जब पुलिस का 3rd डिग्री इस्तेमाल किया जाता है, आप तो फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट में विश्वास ही नहीं करते। आप तो फिर अकाली तो सुप्रीम कोर्ट में विश्वास ही नहीं करते। आप आतंकवादियों के पक्ष में हैं, क्योंकि आपका वोट बैंक पॉलिटिक्स है। ये आपको वोट बैंक पॉलिटिक्स है। आप पहले पूरी सुनिए। नहीं, आप गलत कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट के वो तथ्य आएंगे जो सुप्रीम कोर्ट के सामने इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज लेके आएंगी। ये वही सुप्रीम कोर्ट के सामने तथ्य आते हैं जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज लेके आती हैं। कोई भी ट्रायल कोर्ट, कोई भी हायर अथॉरिटीज, कोई भी कोर्ट, हायर कोर्ट जो है, उनके आगे जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज रिपोर्ट लेके आती हैं, उसी के तथ्यों के बिहाफ पे, वो चार्जशीट के बिहाफ पे फैसला करते हैं। लेकिन इस केस के अंदर अगर आप ये देखें, स्प्लिट जजमेंट थी। एक जज साहब का ये मानना था, शाह साहब का, कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसको सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। तो क्या आप उन जज साहब को ठीक नहीं मानेंगे? बिट्टा साहब, इसका जवाब दीजिए कि एक स्प्लिट जजमेंट थी, सेल्फ कन्फेशन था। नहीं, मेरे कोई कन्फेशन मेरी बात सुनिए। मान लीजिए साहब, मेरा सवाल तो सुनिए। अरे सिरसा साहब, मेरे असूल है, मैं जिंदगी में यारों के लिए राजनीति छोड़ी है, समझ गए ना? यारों के लिए, देश के लिए और यारों के लिए राजनीति छोड़ी है। और गंदी राजनीति की खातिर मैं गंदे वचन नहीं कभी बोलता हूं। जब मेरा स्टैंड है वो स्टैंड है। मैं आपकी बात का कोई जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि आप मेरे एक बड़े अच्छे प्यारे मित्र भी हैं। आपने थोड़ा सा रास्ता अलग कर लिया, मेरा रास्ता वही है। मैं बिजली का जवाब दे दिया। मैंने जो बोला, आपका जवाब बिल्कुल नहीं दूंगा। नहीं, पर साहब ये इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं मित्र हूं। नहीं, पर साहब ये इंपॉर्टेंट सवाल है। थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, मेरी मित्रता रहेगी। ना मैंने जो बोलना था बोल दिया, मैं आपका जवाब नहीं दूंगा। मेरे लिए राजनीति पहले डाल रहे हैं। मेरे लिए दोस्ती जो है ना, वो बड़ी मायने रखती है, मेरे जिंदगी में असूल है। अरे कुर्सी सदा क्या है, आज नहीं तो कल जाना नहीं जानी है। आप मेरे बड़े सिरसा साहब अकाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पंजाब में पॉलिटिक्स हो रही है आतंकवाद के साथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि पंजाब की पॉलिटिकल पार्टी को जवाब देना है। आप जवाब दीजिए, मैं आपसे पूछता हूँ। आप देश के एक सम्मानित नागरिक हैं, मान लीजिए अगर देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिंगल बेंच ने सिंगल बेंच की रूलिंग होती और ये जस्टिस शाह उस बेंच पे होते और इन्होंने ये कह दिया था कि नहीं, पर मेजॉरिटी रूलिंग थी ना। नहीं, ये बेतुका सवाल है, ये बेतुका सवाल है, क्योंकि मेजॉरिटी वर्डिक्ट आया, बुल्लर को फांसी होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया। सिरसा साहब, सूट क्या करता है? तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सूट करने वाली क्या बात है इसमें? एविडेंस नहीं है। अरे सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि एविडेंस है। सिरसा साहब, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि एविडेंस है। एक सेकंड में बिट्टा साहब की बात सुनना चाहता हूँ। अरे मेरी बात सुनो, बोलिए एक एक करके सिरसा साहब, बिट्टा साहब बोलिए। एक बात बताऊं, क्या सुप्रीम कोर्ट मेरे घर की है? क्या सही बात है? नहीं है। क्या मैं जजेस खुद बनाए? क्या मेरा जजेस से कोई लेना देना ना मैं मिला, ना मैं कभी आज तक कोर्ट में गया। अब सुप्रीम कोर्ट के शासन, लोअर कोर्ट से, सेशन कोर्ट से, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। एब्सोल्युटली। उसको हम कैसे चैलेंज कर सकते हैं? दूसरी बात, जहां तक पंजाब की बात है, एक बात मैं स्पष्ट कह दूं, पंजाब में आतंकवाद को लाने की कितनी भी कोशिश हो, पंजाब में आतंकवाद नहीं आ सकता, दोबारा नहीं आएगा। मैं गारंटी से कहता हूं, चाहे सिरसा साहब कुछ भी बोले, मेरे जिंदगी के असूल है, मैं अपने असूलों को नहीं तोड़ता। मैं पॉलिटिक्स कर सकता हूं। पंजाब में आतंकवाद आ गया, अरे मुझे पंजाब का बड़ी अच्छी तरह पता है। पंजाब के जो भी राजनीतिक लोग हैं, अकाली हो या कोई हो, मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं, वो चाहते हैं पंजाब में अमन शांति रहे, चाहे वो बीजेपी, अकाली, कांग्रेस, सारे चाहते हैं। थोड़े से लोग हैं जिन्होंने, अपना सिरसा साहब की बात करता हूं, जिन्होंने जिनको हराया इन्होंने, वो पंजाब में हालात खराब करना चाहते थे, वो पंजाब को, दिल्ली को बर्बाद करना चाहते थे। अच्छा हुआ ये आ गए, मैं इनकी बहस नहीं करना। No, but this is an important question, Mr. Sirsa. The fact that Punjab parties are guilty of politicizing terror. If the Supreme Court has ruled that Bhullar must hang, that's where the debate ends. No. It never ends like this. Of course it ends like that. The investigation agency. No. You can't say that. There is another angle. You know, when Mr. Bhullar was extradited to India, there was undertaking from Indian government that he won't be hanged in India. आप देखिए, government was prepared. Government was prepared to hang him. This is the reason that the investigation agency has put up a case, has put up a charge sheet in the way where judges have left with the no options. बिजली साहब, अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ गया उसको मानिए, आप खत्म कीजिए बहस। ऐसा है कि हिंदुस्तान पूरे संसार के किसी इतिहास में ऐसा है कि किसी भी मानसिक स्थिति जिसकी खराब है
उसको फांसी दी गई हो। इतिहास देखिए, आपको समझना होगा, ये कानून कायदा जो है ये केवल और केवल मिनॉरिटीज के ऊपर थोपा जा रहा है। ये कानून इस तरह से नहीं है कि हिंदुस्तान के सभी नागरिकों के लिए बराबर हो। ये कानून केवल और केवल मिनॉरिटीज के ऊपर I'm sorry. That is not the case at all. You need not to be sorry about this. When you talk about the This is just a persecution attitude which serves no purpose. But Bitta साहब, the question that's being asked is, वो ये कह रहे हैं कि उसकी दिमागी हालत खराब है, वो अस्पताल में है, डॉक्टर्स ने कहा कि वो मेंटली सिक है। मैं ये कहूँ, ये जो बिजली साहब हैं, हाँ, उनके दोस्त है ना, हाँ, इनकी हाँ, और कुछ लोग और है मेरे नाम उसके पास, हाँ, इसकी आईबी और सीबीआई जांच कराए, हाँ, फॉरेन से कितनी फंडिंग आई है आज तक, हाँ, कहां कहां ये प्रॉपर्टी बना रहे हैं भुल्लर के नाम के ऊपर, और परमजीत सिंह सरना की भी जांच कराए, कितना पैसा फंडिंग बार से आई, जांच करा के लोगों के सामने लाए। मैं डिमांड करता हूं, आपको पता चल जाएगा भुल्लर के नाम के ऊपर करोड़ों अरबों रुपया फंडिंग आई। एक्सेप्ट करने को तैयार है बिजली साहब ये चैलेंज? बिजली साहब ये चैलेंज एक्सेप्ट करने को तैयार हैं आप? मैं क्या, ये चैलेंजों के बाद जांच की बात कर रहे हैं, इनको पूछो अमृतसर थानों में इनके ऊपर कितने मुकदमे रजिस्टर हैं, उसकी भी जांच करा लें। साइकिल चोरी के केस है, बहस का मुद्दा नहीं है। वी आर गेटिंग आउट ऑफ द कंटेंट। ये बहस का मुद्दा नहीं है। मुद्दा केवल इतना है, आज की कितने मुकदमे हैं, वो जजमेंट। अरे यार छोड़ो, मुकदमे जांच की बात हो रही है ना, ये बहस है। No, because this is an important question which is being asked, and I want to bring in now Sanjay Hegde, advocate of the Supreme Court, because the debate is whether because there's been a delay, therefore there should be mercy. That I think is central, and it is your belief that there should be mercy because there's been inordinate delay. But it is my question that given the fact that he's a convicted terrorist, there should be no mercy regardless of the delay. My belief doesn't matter. I just want to tell you what the law says, as has been interpreted by the Supreme Court. This question of whether a delay means that the death sentence cannot be carried into effect has been with various courts all around the world since the 1970s. It starts in Trinidad and Tobago in the Michael X case. Some courts took the view that, look, if after the judicial process is over, the man is continually kept on death row, not knowing when the penalty is going to be carried out on him. He is hanging between life and death. This is cruel and unusual punishment, and in such cases, you should not carry out the death penalty. The Supreme Court in the 80s said, within 2 years, if you don't hang the man, no, you will not hang him. Then it was pointed out to the Supreme Court, look, you can't have an arbitrary 2-year deadline. The Supreme Court again looked at it and said, yes, we can't have an arbitrary deadline, but on the facts of each case, we can, in a given case, examine the delay. बिट्टा साहब इसका जवाब दीजिए। मैंने तो कुछ नहीं किया, बम चलाया, पुलिस ने केस लड़ा, फाइल कहां गई? हाँ, राष्ट्रपति जी के पास कहां गई? होम मिनिस्ट्री के बाद कहीं लॉ मिनिस्ट्री के बाद स्टेट मिनिस्ट्री। 3 किलोमीटर के अंदर 15 साल फाइल घूमती रही। तो कसूरवार तो सरकारें हैं। Absolutely, that's an important point. अगर अफजल को फांसी होती है तो हमारा मुस्लिम वोट टूट जाएगा। अगर राजीव गांधी के कातलों को फांसी होती है, तमिलनाडु वोट टूट जाएगा। अगर कसाब को फांसी होती है, मुस्लिम टूट जाएगा। बुल्लर को फांसी होती है, सिख वोट टूट जाएगा। अरे भारत माँ ही टूट जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तमिल पॉलिटिक्स, कश्मीरी पॉलिटिक्स, पंजाब पॉलिटिक्स, सब पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इस वजह से इंडिया को सॉफ्ट टारगेट माना जाता है। इस वजह से बार बार आतंकवादी इंडिया पे हमला करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि किसी तरीके भी वोट बैंक के लिए कभी भी अकाली दल ने कभी भी किसी चीज को बढ़ावा दिया। मैंने नाम नहीं लिया। हमारा आज भी कहना है, आतंकवादी देशद्रोही हैं, आतंकवादियों को फांसी मिलनी चाहिए, लेकिन देवेंद्र सिंह भुल्लर ना आतंकवादी है ना देशद्रोही है, क्योंकि उसके ऊपर मुकदमा जो चलाया गया है वो बिना एविडेंस के चलाया गया है, जो उसके ऊपर कोई भी ना तो इंडिपेंडेंट एविडेंस थी ना पुलिस की एविडेंस थी। You are mocking and demeaning the entire judicial system. You are mocking the entire judicial system, Mr. Hegde. Political parties must accept that he's been found guilty by the highest court of the land. That question of guilt has been settled by the Supreme Court. Yes. Even if it is by a 2-1 verdict, that question is over. His guilt has been pronounced by the highest court of the land. We must respect it. The next question is whether mercy should be extended to him or not. There the president has taken a decision, no mercy. Now comes the third question, because this mercy petition took so long,
does he have a right to have it commuted? Now the Supreme Court has said no. Let's come to a closure. We've had unfortunate events which are 20 years old. आपको लगता है इस पॉलिटिक्स से बढ़ावा मिलता है टेररिस्ट को? मैं आपको बताऊं, आज मुझे कोई 30 साल हो गए, 33 साल हो गए टेररिज्म के खिलाफ लड़ते हुए। मैंने कभी किसी को खुद नहीं मारा, ना मैं किसी को कहा इसको पकड़ लो। अकाली लीडर ने हमें फोन दिया, उन्होंने कहा कि बार बार बिट्टा पे ही हमले क्यों होते हैं, बिट्टा उकसाता है लोगों को, इस वजह से उस पे हमले। देखो, अब मुझे कम से कम 7 साल हो गए, मेरी पंजाब में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। मैं कहा जब पंजाब के अमन शांति चल रहा है तो मैं आतंकवाद की बार बार पंजाब में बात क्यों करूं? बुल्लर के बारे में अगर पंजाब में जाके एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राजवाना की, तो मुझे बता दीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना रहा है तो मैं लोगों को आग क्यों लगाऊं? मैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की तरह आग लगाना मेरा काम नहीं। I want to bring in senior advocate and Congress leader R.K. Anand on this program because Mr. Bitta is leveling some very direct charges. He's saying Kapil Sibal, and he's got over here the plea before the Supreme Court where Kapil Sibal, senior advocate, member of parliament, spokesperson for the Congress party, appeared in the Supreme Court in favor of Devinder Pal Singh Bhullar. Now these are important questions. He says Ambika Soni called him and क्या पता, एक बार रिपीट कीजिए आपने, अंबिका सोनी ने आपको क्या बोला? मैं अंबिका सोनी ने मुझे बुला के खुद कहा कि इस मामले में आप चुप हो जाइए। क्यों कहा उन्होंने? भाई हाईकमान ऐसा चाहता है। मैं कहा मैं अपने मामले में तो चुप हो सकता हूं, पर जो मेरे साथ सुरक्षा जवान शहीद हो गए, जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता शहीद हो गए, जो बहनों के सुहाग उजड़ गए, बच्चे यतीम हो गए सड़कों पे आते जाते, मैं उनकी लाशों के साथ, उनकी कुर्बानियों के साथ मैं धोखा नहीं कर सकता। जो आप मेरा बिगाड़ सकते हैं बिगाड़ लो, और बिगाड़ा मेरी एनर्जी वापस ली, मेरे ऊपर कई तरह के पॉलिटिकल मेंटली टॉर्चर किया गया, मैंने सहा, मुझे कोई फिक्र नहीं। Mr. Anand, now these are important questions and the country needs to know why is it that politicians have been playing such a nefarious role when it comes to fighting terror. They are putting vote bank politics ahead of the fight against terror, Mr. Anand. See, I must tell you very, very clearly, irrespective of the politicians, I must give you viewpoints very clearly. Yes. First of all, whenever an incident takes place where 13 people have died, besides Mr. Bitta who got injured himself. Yes. And Supreme Court confirms one sentence of death. I do not find any reason thereafter to alter the punishment of a death, especially in a case of a terrorism. This is my principal view, and I make it point very clear. There can be a situation where somebody approaches the government because the government has got a power under section 433 to commute the sentence or bring down the sentence without the consent of the person who has already been sentenced. But not that in arbitrary manner you can reduce the sentence. There can be a situation just like in Rajiv Gandhi's murder case. Rajiv Gandhi's daughter had gone to meet the person concerned in jail, and she said that no, she should not be given a death sentence. I can understand that somebody goes to Supreme Court and Mr. Bitta and their family members who have already died therein, they are called by the judges and their views are heard. At least they are the sufferers and their views are heard, and if they are satisfied that these people have suffered a lot, that's enough. So, sentence may be... No, but why are we putting emotions? I'm surprised, Mr. Anand, as a lawyer, you are talking about emotions and forgiveness. In India, where there's constitutional law, the law must do its own job. The courts must announce they found Mr. Bhullar guilty. He must now hang. I said that is why I am saying, tomorrow supposing an Akali leader would have died. Yes. Now there is a Congress chief minister died, and the Akalis are asking, yes, the sentence should be commuted. I am saying that irrespective of the individual having been killed, they should not take time to hang the individual concerned after Supreme Court hands down the punishment. This is my view. As simple as that one. No, but I am asking and there is a time limit. I am asking you about what Mr. Bitta is saying. He says Ambika Soni called him and put pressure on him, told him that the High Command, and you were at the center of things at that time for a very long time. I am asking you about the role both the Akalis and the Congress have played in delaying the process of justice. If justice is being delayed, it is because of the vested interests of our politicians, sir. If frankly speaking, whether Mrs. Ambika Soni spoke to him or not, it is for Mr. Bitta to answer and for Mrs. Ambika Soni to answer. Whether Mr. Kapil Sibal appeared in this case or not, it is for Mr. Kapil Sibal to answer. I feel, according to my view, is
that in any view of the matter, any cases related to terrorism, the punishment after handed down by the Supreme Court is final, and there's no question of mercy in that case. In all the cases of this type, the question of integrity of the nation is involved, and certain people have died, and that too of a youth congress. Where is the question of giving any commutation? Where is the question of converting from death sentence to the life imprisonment? Sanjay Hegde disagrees with you. Mr. Hegde, not too many people are on your side. The fact is, here's a convicted terrorist. He must pay for his sins. Why are you even arguing that his sentence should be commuted? I am not arguing. Maybe it is time now to depoliticize this debate. Now the question is, when a death sentence is imposed by the Supreme Court, there is a power of clemency. If clemency is declined, the sentence is carried out. Now we have dragged out this process of clemency primarily because two incumbents of the high office of president did not really like signing on files which but they signed up for that job. That's their failing. They signed up to be president, and the job of the president involves signing off on It's an open secret that two presidents of India basically said, don't put up those files. They kept a pocket veto over things. That is what has really led to the situation. Okay, I have one final question before I end this program. I'm being told that the doctors are saying that Bhullar's health condition is not good. He's showing psychotic and suicidal tendencies. He's suffering from severe depression, and Bhullar is not fit to hang. Do you think this can be an impediment even after the Supreme Court has come out and given its final verdict, sir? Definitely, yes. I want to ask Mr. Hegde that same question. Look, the law has provisions that a pregnant woman you will not hang. Similarly, somebody who is mentally ill, you will not hang. But one doctor's certification is not the final word. In an appropriate case, entire board can go. आपको लगता है बेटा साहब ये फिर बच सकता है अगर डॉक्टर साइन करके दे दें कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है? कोई डॉक्टर हिम्मत नहीं इतनी करेगा गलत लिखने की, जो मुझे उम्मीद है। और शीला डिस्ट्रिक्ट हो या कोई हो, जो पॉलिटिकल प्रेशर डालेगा उसको पता कि आने वाला वक्त फिर मेरा जेल में होगा। उसको बाहर से फंडिंग आ रही है, हमारी भी इंफॉर्मेशन है, आप भी अपनी इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए। आप इतना कुछ निकालते आपको पता चल जाएगा। मेरे पास ऐसे कई फोन नंबर है जहां इनकी फॉरेन में, जर्मनी के अंदर, यूके के अंदर और अमेरिका के अंदर बातें होती है। फंड कहां जा रहा है, कौन आदमी इनके फंड को देखता है, कहां कहां ये प्लॉट खरीद रहे हैं। ये फांसी के मुद्दे के ऊपर इन्होंने दुकानदारी चला ली। अरविंदर सिंह बिजली, क्या आपको ये उम्मीद है कि आप फिर भी बच जाएगा बुल्लर, क्योंकि डॉक्टर ये शायद कह दें कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है? ना किसी डॉक्टर की मर्जी से, ना डॉक्टर की बिना मर्जी से है, ना बिट्टा साहब की मर्जी से है, ना इनकी बिना मर्जी से है। जब हालात खराब है तो खराब है। और हमारा एक क्वेश्चन बिट्टा जी से है, आपने कभी कहा कि मैंने पंजाब में कोई भी व्यक्ति नहीं मरवाया। आप मेरे को सिर्फ इस बात का जवाब दो, देवेंद्रपाल सिंह भुल्लर के पिताजी और मासड़ को आपने पुलिस से मरवाया कि नहीं मरवाया? नहीं मरवाया तो उनकी आज तक लाशें क्यों नहीं मिली? अपने परिवार की, गुरु गोविंद सिंह महाराज की, अपने पूर्व गुरुओं की, और आपके साथ अभी राजबंद साहब, बंगला साहब चले चलता हूं, कसम खा लेता हूं, अगर मैंने उसके परिवार को किसी को मरवाया हो, मेरा चौराहे पे खड़ा करके मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूं, ये मैं आपको बता दूं। और कोई गारंटी लेना चाहते हैं, मैं तैयार हूं, जहां कहे मैं जाने के लिए तैयार हूं। गलत इल्जाम नहीं लगाना। I want to go across to R.K. Anand and understand from him before we conclude this debate whether, because the doctors might say that Bhullar is mentally unstable and that he's suffering from psychotic and suicidal tendencies, can he get away? All these arguments were supposed to be done before the Supreme Court. Now there is no ground on the basis of which the sentence of death cannot be imposed. It has to be imposed, and it should be done immediately. Well, Sushil Kumar Shinde has been keeping a low profile. We've seen he's moved the files and got Kasab and then Afzal Guru executed. He needs to move fast because there can be no politics with terror. There should be no mercy with terrorists. Thank you very much, Bitta Sahab, for coming, and I'm very glad that after so long, finally, justice is being done in this case. Now that the Supreme Court has ruled, this debate must end. The terrorist must hang. Thank you also to R.K. Anand for joining us, Mr. Hegde, Mr. BIJLI, and Mr. Sirsa. Thank you very much.